नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी 3 मुल्कों के दौरे से वतन वापस। दौरे के आखिरी दिन गुयाना के साथ किए 10 समझौते, रिश्तों की मजबूती पर दिया जोर। आलूगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली में दाखिले के पॉइंट की निगरानी में तहसुली पर पुलिस की सरजनिश, सीसीटीवी रिकॉर्ड किया तलब। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डीआरजी के साथ एनकाउंटर में मारे गए 10 नक्सली, खुफिया इत्तला पर हुई कार्रवाई, बड़ी तादाद में हथियार बरामद। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे पर सर्वे के बाद तनाव का माहौल, नमाज जुमा के दौरान सिक्योरिटी दस्ते रहे तैनात। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शुरू किया रेवड़ी पर चर्चा प्रोग्राम। दिल्ली सरकार की अवामी सहूलतों को बनाया इंतखाबी इशू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के दौरे से लौट आए हैं। अपनी वापसी से पहले पीएम मोदी ने गुयाना में लोगों को अगले साल प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ में शिरकत के लिए मदऊ किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर अपनी सरकार के कई अहम कामों का जिक्र भी किया। फ्रेंड्स, भारत को जानिए क्विज had been launched. I call upon you to participate. Also encourage your friends from Guyana. It will be a good opportunity to understand India, its values, culture, and diversity. Friends, next year, from 13th January to 26 February, Mahakumbh will be held at Prayagraj. I invite you all to attend this gathering with families and friends. You can travel to Basti or Gonda, from where many of you came. You can also visit the Ram temple at Ayodhya. There is another invite. It is for the Pravasi Bharatiya Divas that will be held in Bhubaneswar in January. If you come, you can also take the blessings of Mahaprabhu Jagannath in Puri. India's growth has not only been inspirational, but also inclusive. Our digital public infrastructure is empowering the poor. We opened over 500 million bank accounts for the people. We connected these bank accounts with digital identity and mobiles. Due to this, people receive assistance directly in their bank accounts. Ayushman Bharat is the world's largest free health insurance scheme. गुयाना में हिंदुस्तानी वजारत खारजा के सेक्रेटरी जयदेव मजूमदार ने कहा है कि इंडिया और कैरिकोम के बीच साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने 7 नुकाती तजावीज पेश की हैं। खारजा सेक्रेटरी जयदीप मजूमदार ने मजीद कहा है कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी और गुयाना के सदर अली ने इंडिया गुयाना रिश्तों के सभी पहलुओं पर बात की है और दोनों मुल्कों के बीच 10 समझौते किए हैं। During the interactions, they discussed the entire gamut of India-Guyana relations. 10 agreements were exchanged between the two sides,
and these covered areas such as hydrocarbons and energy, health and pharmaceuticals, agriculture, digital cooperation, culture, defense and security studies, etc. Today, the Prime Minister and the President planted a sapling in honor of President Ali's mother at the State House as part of the initiative of Ek Peड़ Maa Ke Naam, highlighting the shared commitment to sustainability between India and Guyana. President Irfan Ali, in a very heartwarming gesture, hosted Prime Minister over a traditional 7 curries meal. After holding bilateral engagements with Guyana, Prime Minister co-chaired the second India-CARICOM summit along with Prime Minister Dickon Mitchell of Grenada, the current chair of CARICOM. The summit was attended by heads of states and government of 11 member states, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Guyana, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, and the foreign ministers of Belize, Jamaica, and St. Kitts and Nevis. The Secretary General of the Caribbean Community, Dr. Carla Barnett, was also present. The leaders witnessed a flypast of the recently acquired HAL 228 aircraft, 2 of which Guyana has received from India and have been commissioned. This is to further strengthen the India-CARICOM partnership. Prime Minister put forward 7 pillar proposals as CARICOM, as CARICOM, standing for C for capacity building, A for agriculture and food security, R for renewable energy and climate change, I for innovation, technology and trade, C for cricket and culture, O for ocean economy and maritime security, and medicine and health care. CARICOM leaders, in one voice, applauded these initiatives from India. They highly appreciated Prime Minister's special efforts to strengthen relations with the group. His 7 pillars, encompassing all the issues of relevance to CARICOM nations, was highly appreciated. These include issues facing CARICOM countries, such as high incidence of non-communicable diseases, such as cancer and diabetes, shortage of skilled manpower, climate resilience and sustainable development, energy security, including exploitation of renewable energy, national security, including coastal surveillance, connectivity, particularly inter-island maritime connectivity for both goods and passengers, and women empowerment and the promotion. Going to India often myself. जॉर्जटाउन गुयाना में पीएम मोदी से बातचीत के बाद साबिक क्रिकेटर एल्विन कालीचरण ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कुछ इस तरह अपने ख्यालात का और एहसासात का मीडिया के सामने इजहार किया। Everybody in India knows cricket, but his knowledge is special because he knows when we went to India, he knows us by our first name, and me myself going to India often myself, so I'm able to have that interaction with India, and to meet the Prime Minister today personally, it's magic. The connection is tremendous, and that kind of help to work with our young cricketers, girls cricket, men's cricket, whatever he does, any help, it is very kind of the Prime Minister and India. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सख्त हिदायत के बावजूद ग्रेप 4 के ज़ाब्तों की पाबंदी कराने की पुलिस की तसाहिली पर नाराजगी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के दाखिले के 13 रास्तों की सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द मामले में एमिक्स क्यूरी को देने का हुक्म दिया है।
बार के 13 वकील दिल्ली में दाखिले के पॉइंट्स पर जाएंगे और वहां ग्रेप 4 के ज़ाब्तों पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में दाखिले के 113 पॉइंट्स में से सिर्फ 13 पर ही निगरानी रखी जाती है, जबकि तकरीबन 100 पॉइंट्स पर ट्रकों की आमद रफ्त की जांच करने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डीआरजी के जवान अपने कामयाब ऑपरेशन का जश्न मना रहे हैं। इनके साथ छत्तीसगढ़ के जुनूबी सुकमा में हुई मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने इस एनकाउंटर के बाद मीडिया को बताया है कि डीआरजी ने मौके से INSS AK-47 SLR और कई दीगर हथियार बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि सुकमा जिले के जुनूबी इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिले थे। ऑपरेशन के लिए डीआरजी को भेजा गया था, जिसने जुमे की सुबह यह कार्रवाई की है। सुकमा में एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से हमारी सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल के जवान बहुत ही कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों को समाप्त करने का, नक्सली उन्मूलन करने का जो अभियान चलाया है, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। और बहुत जल्दी हमारे सुरक्षा बलों के मेहनत से, बहादुरी से बस्तर हमारा नक्सल मुक्त होगा, बस्तर में शांति होगी, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। सुकमा जिले के भेज्जी क्षेत्र में डीआरजी के ही जवानों के माध्यम से आज सुबह से ही ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए हैं। उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं और ये निसंदेह जवानों के सामर्थ्य का, जवानों के भुजाओं की ताकत का परिणाम है जो आज हमको देखने मिल रहा है। अमित शाह जी का संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद ये समाप्त होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मुझे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में समूचा बस्तर इस लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। जिला सुकमा के दक्षिण क्षेत्र में माओवादियों के कोंटा एम किस्टारा मेरी कमेटी कैडर्स की उपस्थिति तथा PLGA प्लेटून नंबर 4 एम 8 के माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के आसूचक के आधार पर DRG MCRP बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज दिनांक 22 नवंबर को सुबह लगभग 10 बजे से अनेक बार DRG टीम या माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 10 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे और AK-47 SLR इंसास जैसा ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक काफी हथियार बरामद की गए थे। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। CRPF टीम से हम DRG का अतिरिक्त बल रीइंफोर्समेंट के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के उपरांत हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकता है। अभी आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है, जैसे कार्रवाई अभी लगातार कंटिन्यूस चल रहा है। सर्चिंग उपरांत फिर हम विस्तार से और जानकारी बता पाएगा। जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने मुथी फेज 2 क्वार्टर में उनके दुकानों को मिसमार किए जाने पर मुआवजे की मांग की है। ये दुकानें 3-4 दिन पहले जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी JDA ने मुनहदिम कर दी थी। जम्मू में कश्मीरी पंडितों की दुकानों के निदाम पर रियासत के राहत और बाज़ाबादकारी कमिश्नर अरविंद कारवानी ने कहा है कि मुनहदिम की गई दुकानें JDA की जमीन पर बनी हुई थी। जो ये शॉप्स थी जो हमारे पास रिपोर्ट थी, जो JD का लैंड, JD के लैंड पर ये शॉप्स बनी थी, तो JD ने इसको डिमोलिश किया है। इसके बारे में डिटेल्स हमारे पास नहीं है क्योंकि वो JD एक अलग एजेंसी है और हमें इसके बारे में डिटेल्स नहीं है। लेकिन ये है कि जो मुठी का माइग्रेंट कैंप है वहाँ ऑलरेडी हमने एक टेंडर फ्लोट किया है और कुछ दिनों में उसका टेंडर जो है फाइनल हो रहा है दुकानों का, क्योंकि वहाँ के जो इनमेट्स है, वहाँ के जो लोग हैं, पब्लिक की डिमांड थी वहाँ पर शॉप्स बननी चाहिए, जैसे बाकी कैंप्स में भी है। जगती में दुकानें बनी हैं या बाकी कैंप्स में, तो उसी हिसाब से लोगों की डिमांड थी, तो हमने वो शॉप्स, उसका टेंडर, जैसे मैंने कहा कि टेंडर फ्लोट हुआ है और जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो क्या जिनकी दुकानें टूटी हैं उन लोगों को, क्योंकि वो कह रहे हैं 7-8 ही दुकानें हैं जो वहां रनिंग थी,
तो क्या उनको कोई प्रायोरिटी दी जाएगी सर, क्योंकि वो हमारे एज पर जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी प्रेसिडेंट्स रहा है, जो ऑलरेडी वहां पे कैंप्स में दुकान कर रहे थे, 90 से दुकान कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस डेफिनेटली मिलती है। और ये मैंने वहां पे इन लोगों को भी, जब मुझे कल वहां पर हम अवेयरनेस कैंप, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्कीम्स के अवेयरनेस के बारे में अदरवाइज भी गए थे, पंचायत वोटर लिस्ट के इश्यूज को लेकर भी हम सभी जगह कैंप्स कर रहे हैं। तो वहां पर लोग मुझे मिले थे, मैं कल मुठी नहीं था, तो उनको मैंने ये एश्योर किया कि जैसे हमारी दुकानें कंप्लीट होगी तो एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी लोग उस क्राइटेरिया में आएंगे डेफिनेटली उनको कंसिडर करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो 90 से वहां पर शॉप्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो इन लोगों को भी मतलब जल्दी ही, अगर जितनी जल्दी दुकानें बने तो इनको दिए जाएगी दुकानें। वही मैं कह रहा हूं कि हमारी कोशिश है जल्द से जल्द, अभी तो कुछ दिनों में, जैसे पीडब्ल्यूडी हमारी इसमें एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, दुकानें जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी तो हम वो साथ साथ ही हम अलॉटमेंट का क्राइटेरिया भी उसको ये करेंगे। और डेफिनेटली मैंने आपको कहा कि जो इसमें क्राइटेरिया में फॉल करेंगे सभी एलिजिबल लोगों को मिल जाए। क्या सुरक्षित है? हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाईकोर्ट के जरिए दिल्ली में हिमाचल भवन को अटैच किए जाने पर अपोजिशन के तफसरों को बचकाना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम कोर्ट में ही लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, एक तो पहली बात की जो हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी के रूप में हुआ है, आज उसमें हियरिंग हुई है और उसमें स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने सीपीएस को हटाया है, ये सही है। पहली बात तो ये है कि उसको सही ठहराया हाई कोर्ट के फैसले को कि भाई जो हटाना उनका जो है, क्योंकि कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक जो उनकी नियुक्ति जो नहीं की गई है और उस तरह से उनको हटाना उचित है। लेकिन दूसरा पार्ट पे जो है उसमें जो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन एमएलएस की उसमें बनती है कि नहीं बनती है, इस सारी चीज को उन्होंने कहा कि इस पे हम स्टे लगाते हैं और उसके बाद अगली हियरिंग इसके लिए तय हुई है। और आगे इस बारे में हमारा जो लीगल पार्ट को देख रहे हैं वकील जो है वो कानूनी सलाहकार और सारी कानूनी तरीके से इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अगली बहस पे इस पर बात रखेंगे। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि सीपीएस असंवैधानिक पाए गए और इसलिए उनको हटाने का फैसला हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने भी के लिए अच्छा काम कर रहा है। लगातार विपक्ष इसका मुद्दा बनाते आया है और ये मुद्दा हमेशा उठाते आया कि सीपीएस की नियुक्ति सही नहीं है। मुद्दा तो विपक्ष ऐसे बनाता है, कभी पता नहीं टॉयलेट टैक्स बोल देता है, कभी बोलता समोसा कहीं गायब हो गया, कई बार मुद्दे बचकाना हो जाते हैं। तो उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। देश हित की बात सर्वोपरि, प्रदेश हित की बात सर्वोपरि होती है और इस प्रकार के मीडिया चैनल भी बहुत चलाते हैं, तो ये सब चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, हिमाचल भवन काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं, दूर दराज से आते हैं, वहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन भी चखते हैं। क्या सुरक्षित है हिमाचल भवन? नहीं, ये तो सुरक्षित ही है, इसमें क्या हुआ। इसमें पूरी तरह अरे परे अपने सिक्योरिटी भी लगाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कोर्ट के फैसले होते हैं, ये इस प्रकार के फैसले, अभी बीकानेर हाउस हुआ तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से भी पूछे जाने चाहिए। ये फैसले कोर्ट के होते हैं, उसमें कहा जाता है कि अगर आप फैसलों में ऐसा व्याख्यान किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिमाचल काफ़ी राष्ट्रीय सुर्खियों में था, तो इस प्रकार की बातें सुर्खियाँ बन जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा सिर्फ उनसे ये लड़ाई है कि जिस कंपनी ने सिंगल बेंच के जो जजमेंट है जिसमें उसका कहा कि कंपनी को 64 करोड़ रुपया दे दिया जाए, हमने कहा कि वो 64 करोड़ उनका अधिकार नहीं है। जिस केस में हिमाचल भवन को उन्होंने बात की है, हमने कहा कि इस केस को हम लड़ेंगे और हम उसको लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हमने उस केस को लड़ने की बात की है। हिमाचल की संपदा को हम ऐसे ही थोड़ी लुटने देंगे कि किसी का फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट भी। धन्यवाद।
मणिपुर में तशद्दुद के दौरान वजीरों और अरकान असेंबली के घरों पर हमले की सीएम एन बीरेन सिंह ने मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग बेकसूर लोगों के मारे जाने पर एहतजाज कर रहे हैं, हम उनके आंदोलन की हिमायत करते हैं, लेकिन इस आंदोलन के नाम पर कुछ गिरोहों ने लूटमार की है, घरों को जला दिया है। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। How do you say regarding of the attack in the name of agitation, looting the houses, residences of the ministers and I already told, I already condemned कि those who are genuinely agitating against the killings of the innocent people, they are genuine. Their movement, their agitation, we support because everybody has right to democratically agitate. But in the name of the democratic movement, some gangs have looted, burned the honorable minister houses and looted their properties. So appropriate legal action we have already initiated. We have already identified through CCTV who's who, and it is very, I feel shame to express this publicly that मणिपुर में ऐसा ही हो रहा है, एजिटेशन के नाम पे लूट कर रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। We will take legal action. Sir, there is a public demand that Manipur should have a separate governor. सेपरेट गवर्नर है ही है, क्या है भाई? छोड़ो। यूपी के ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी अमले के सियासी इस्तेमाल पर कांग्रेस के लीडर प्रमोद तिवारी ने एक मरतबा फिर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल तो हुआ है और इसके बहुत सारे सबूत सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में सरकारी मशीनरी और तंत्र का दुरुपयोग तो बहुत सुना था, पर इसमें तो देख लिया, जो वीडियो आए, ऑडियो आए हैं, न्यूज की रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट है, उसमें दरोवर पिस्तल तान के लोगों को नहीं आने दे रहा है, एक समुदाय के लोगों को वोट नहीं पड़ने पा रहा है, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो निर्वाचन आयोग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार बैरिकेड लगा के वोटर्स को आने से रोक रही है। कहा जाता है कि कोई और आइडेंटिटी कार्ड ना चेक करे, पुलिस चेक कर रही है। तो कुल मिला के ये इलेक्शन था, ये इलेक्शन के नाम पे जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए सारी परंपराएं, मान्यताएं तोड़कर इलेक्शन था। निर्वाचन आयोग से पहले ही अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने कह दिया था। अब तो इस पर कार्रवाई इलेक्शन आयोग को करना चाहिए, चुनाव आयोग को। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे पर किए गए सर्वे के बाद यहां कशीदगी का माहौल है। जुमे की नमाज के मौके पर एहतजाज के अंदेशे के पेश नजर मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी दस्ते तैनात किए गए थे। हम आपको बता दें कि वकील विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया था, जिस पर सुनवाई के बाद 19 नवंबर को मकामी पुलिस और मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अरकान की मौजूदगी में एक सर्वे किया गया था। जनपद संभल में जामा मस्जिद पर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद में थोड़ी सी कशीदगी बढ़ गई है। उसी कशीदगी को ध्यान में रखते हुए करीबन 3 दर्जन लोगों का 107-16 जो कि 126-135 BNS की कार्रवाई है वो भी की गई है, जिनको भारी मुचलके से पाबंद करवाया गया है। उसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग जिसमें PAC, RAF और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के माध्यम से फुट पेट्रोलिंग की गई है और सभी लोगों को एक सुरक्षित माहौल का एहसास कराया गया है। उसके साथ साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी की गई हैं और उन सबसे आग्रह किया गया है कि अपनी अपनी जो जुमे की नमाज है वो अपनी क्षेत्र की मस्जिदों में ही पढ़ें। उसके साथ साथ जामा मस्जिद की जो मोहल्ला कमेटी है उनके साथ भी मीटिंग की गई है, उनके द्वारा भी इसमें ऐलान किया गया और बताया गया है कि सभी लोग अपने अपने थाना क्षेत्र की जो मस्जिद है उन्हीं में नमाज को पढ़ें। और मैं उम्मीद करता हूँ बार की जो नमाज है वो भी शांतिपूर्वक तरीके से चलेगी और जनपद में शांति का माहौल है वो बरकरार रहेगा और कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है या कोई भी अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी।
आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने 2025 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन से पहले दिल्ली के अवाम के साथ रेवड़ी पे चर्चा प्रोग्राम शुरू किया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार बिजली पानी पर सब्सिडी और खवातीन को डीटीसी में मुफ्त सफर जैसी सहूलतों को अपोजिशन पार्टियां फ्री की रेवड़ी कह रही थीं और इनकी मुखालफत करती रही हैं। अब आम आदमी पार्टी इन्हीं अवामी सहूलतों को इंतखाबी इशू बनाने की कोशिश कर रही है। आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया तो पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी। ये पर्चा बांटा जाएगा इस पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। पहली रेवड़ी है फ्री बिजली और नो पावर कट। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली हो। तो कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना कि आप लंबे लंबे पावर कट के लिए बटन दबा रहे हो, नहीं तो झाड़ू का बटन दबा देना। कई लोगों के मेरे को पता चला है कि कई हजार रुपए के पानी के गलत बिल आ गए हैं। उन सबका मैंने ऐलान किया है कि आपको पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, हम आपके सारे गलत पुराने बिल माफ कर देंगे और फिर से आपके जीरो आने लग जाएंगे। तीसरा है अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए। इनके 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा बता दो जहाँ पे ऐसे स्कूल हो। फिर से आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपके बच्चों का ये स्कूल फिर से बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने इनको वोट किया। आज चौथी रेवड़ी है। आज दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल बन गए जहाँ पूरा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। अगर दिल्ली में आपने इनको वोट दे दिया तो फिर से ये सारे सरकारी अस्पताल खराब हो जाएंगे। पांचवी रेवड़ी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा। बीजेपी की हमेशा मांग रही है कि भाई हम इनकी बस यात्रा जो है मुफ्त बंद होनी चाहिए। और बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा की स्कीम है वो भी ये लोग बंद कर देंगे। 10,000 किलोमीटर की गलियां और सड़कें बनवाई है मैंने कच्ची कॉलोनियों के अंदर। 6800 किलोमीटर का सीवर की पाइपलाइन डलवाई है, पानी की पाइपलाइन डलवाई है, नालियां बनवाई है हम लोगों ने। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। 6 रेवड़ी तो हो गई, 7वीं रेवड़ी आने वाली है। हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए हर महीने डलने की शुरुआत होने वाली है। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ो।